ہمارا جو پروگرام ہے وہ پبلک انٹریکشن ہے. میں تمام آڈینس سے BYC کی جانب سے اور فیملیز کی طرف سے معذرت کرتی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مسئلے ہیں اور ہم لوگ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر آئے ہوئے آڈینس کو ٹائم نہیں دے سکتے. تو اس وجہ سے ہم نے اس پروگرام کا مقصد بس یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو یا کہ کمنٹ کرنی ہو مارنگ سے، سمی سے یا شاجی سے یا کہ جو فیملیز موجود ہیں ان سے، تو وہ کر سکتا ہے، سامنے آ کے کرے. اور کمنٹ یا سوال کرنے سے پہلے اپنا نام بتائے، اپنا تعارف کرے کہ کہاں سے آیا ہے اور پھر اپنا سوال کرے. بہت شکریہ. جس کو بھی سوال کرنا ہے وہ ہاتھ اوپر کرے اور ایک ایک کر کے سوال پوچھے. تو نا میں میڈم مارنگ بلوچ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور بہت قابل تعریف ہے کہ انہوں نے نا یہ ایک حق کے لیے آواز اٹھائی ایک خاتون ہوتے ہوئے. تو باقی نا میں سب دوستوں سے میری یہ کیا کہتے ایک افسوس اور شرمندگی کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں، ہم ایٹمی پاور ہیں تو میرے خیال سے وہ ایٹم بم کو ہم نے قبر میں تو نہیں لے کے جانا، نہ اس کا ہمیں قبر میں لائٹ یا کوئی الیکٹریسٹی یا کوئی اس سے ہم نے پنکھے وغیرہ قبر میں لگانے. جب اس ملک میں یہ دیکھیں کسی کی بکری بھی گم ہو جائے نا، اگر کسی کا کوئی بال پوائنٹ بھی گم ہو جائے نا، تو میرے خیال سے وہ کئی دن ان کو چین نہیں آتا ہوگا. تو ایک ماں سے اس کا لخت جگر چھین کے نہ اس کو غائب کر کے اور اس کو انکاؤنٹر کر کے کسی ویرانے میں پھینکنا، یہ بہت بڑا میرے خیال سے عظیم گناہ بھی ہے. اور ہمارے لیے ایز اے قوم تو ہم نہیں رہے، خیر قوم تو ہم نہیں کہہ سکتے، ہم تو غفلت کی گہرائیوں میں جہاں پہ نہ تو ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ ہم خدا کے قریب جا سکتے ہیں اور نہ ہم یہاں پہ رہے، کیونکہ یہاں پہ اسلام آباد میں بہت بڑے بڑے اور صاحب حیثیت لوگ ہیں جن میں بیشتر کو میں جانتا ہوں جو کہ بلوچستان کے اعلیٰ عہدیدار بھی ہیں، اور لیکن ان کو بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے. تو یہ وسائل کی جنگ ہے، یہ کبھی پٹھانوں پہ مسلط کی جاتی ہے ہمارے فاٹا ایریاز میں اور کبھی بلوچوں پہ مسلط کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے میں نا مارنگ بلوچ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے یہاں پر اس سردی میں خواتین اور بزرگ بچے اور سب یہاں پہ آئے، تو کیا گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو کچھ اس حوالے سے کوئی مثبت بات چیت ہوئی یا کیا کچھ ہوا؟ کیا حکومت کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، ایک مسلط گروہ کا کہوں گا جو کہ ایک مسلط ہو چکا ہے ہمارے اوپر، جن کو اہلیت نہیں ہے بالکل ہی اس ملک کو چلانے کی یا ملک کو سنبھالنے کی. تو ان سے اگر ان گروہ سے، ان مافیا گروپ آف مافیا سے اگر آپ کا کچھ بات چیت ہوئی ہے اور وہ کس نتیجے پہ پہنچی ہے، وہ ذرا کائنڈلی بتا دیں. السلام علیکم، اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے انٹریکٹیو سیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. حکومت کی جانب سے ہمیں کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا ہے، کوئی اپروچ نہیں ہوئی ہے. اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ تحریک کا آج 12واں دن ہے صرف اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں بھی اس ریاست کی تمام کوشش یہی ہے کہ کیسے ہمیں ہراساں کیا جائے اور کیسے جو ہے نا ہمیں یہاں سے ہماری احتجاج کو سبوتاژ کیا جائے، اور جو مین ایشو ہے اس پر کبھی کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور کل جو سپریم کورٹ کے ریمارکس تھے وہ کافی ان پر ہم مذمت کرتے ہیں، جب یہ کہا گیا کہ 20 سال کا ایشو ہم حل نہیں کریں گے. تو پھر یہ ایشو کس کا ہے؟ 10 سال والے لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال پرانے جو لوگ ہیں ہم ان کو رہا نہیں کریں گے، تو پھر کیا وہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں؟
تو ہماری ان شارٹ ابھی تک جو ہے نا ہمیں کسی نے ایک خاطر خواہ جو مذاکرات ہوتی ہے ہماری باتوں کو آج تک جو ہم کلیم کر رہے ہیں کوئی ہمیں سننے نہیں آیا, کوئی ہمیں دیکھنے نہیں آیا. اور آج بھی ہماری جو بلوچستان حکومت ہے ان کے جو وزراء ہے وہ ہر دن ایک پریس کانفرنس کر کے ہماری یہ جو پرامن تحریک ہے اس کو ایک الگ نام, ایک الگ ایجنڈے کا قرار دے کر اب بھی اپنے ریاستی بیانیے کو آگے لے جا رہے ہیں. تھینک یو. اور میں آڈینس کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, 1 منٹ ہم آپ کو دیں گے, جس سے 1 منٹ میں آپ کو کمنٹ کرنا ہے یا کہ سوال کرنا ہے وہ 1 منٹ میں کریں. اور یہاں پہ آ کر پہلے اپنا تعارف کریں, نام کہاں سے آئے ہیں, پھر شروع کریں. اگر کسی اور کو سوال کرنا ہے یا کمنٹ وہ بھی ہے سامنے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا نام فہیم خان مروت ایڈوکیٹ ہے. میں اسلام آباد میں ایز اے لائر پریکٹس کر رہا ہوں, اسلام آباد کچہری کے اندر. میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ پچھلے دنوں میرے علم میں آئی تھی کہ کچھ بندے آپ کے اریسٹ ہوئے تھے یہاں سے, کیا وہ بندے ریلیز ہو چکے ہیں یا جیل سے؟ اور دوسرا, میں یہاں پہ ایک اپنی حاضری بھی دینے آیا تھا آپ سب ماؤں بہنوں کو, بھائیوں کو, بزرگوں کو. میں شرمندہ بھی ہوں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ کس ہتھ کنڈوں پہ آ چکی ہے کہ ابھی بھی ریسنٹلی مجھے ایک دوست ملا ہے, یہ ان کے بچوں کو ہائی کورٹ نے ریلیز کر دیا تھا, بری کر دیا تھا. سزائے موت کا کیس تھا, وہ سزائے موت کو توڑ کے اسے مطلب بری کر دیا تھا. لیکن چونکہ مطلب ملٹری کورٹس کے فیصلے تھے اور انہوں نے آگے اس کے اگینسٹ, یہ مجھے دکھا رہے ہیں اختر منیر ولد احمد جان ہے اور دوسرا نیک محمد ولد احمد جان, ان کو ملٹری کورٹس نے سزا کیا تھا سزائے موت, اور بعد میں ان کو ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا. تو پشاور ہائی کورٹ نے جب بری کیا تو انہیں جیل سے ریلیز ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس کے آگے فیصلے کے اوپر انہوں نے مزید مطلب ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے سٹے لے لی. ابھی 5 سال سے یہ بندے بھی وجہ, اور مطلب ان کو ریلیز ہونا چاہیے تھا جیل سے. اتنی مطلب ہر درمی ہمارے اسٹیٹ کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو مطلب آپ لوگ کے بیکورڈ ایریاز میں یہ ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ پاکستان میں اسلام آباد میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں. مطلب ہمارے ادھر اسلام آباد سے اٹھائے جا رہے ہیں لوگ, ان کا علم میں نہیں آ رہا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں, کیا پوزیشن ہو رہی ہے ان کے ساتھ. کیا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا, کیا وہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا؟ اگر رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ رائٹس پروٹیکٹ کس نے کروانے ہیں؟ ہماری ان کورٹس نے کروانے ہیں, ہمارے ان ایجنسیز نے کروانے ہیں. ہمارے جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پروٹیکشن بھی دیں, پلس ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیشن سے بچائیں. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ میم, اگر اسلام آباد میں جو ابھی آپ کے کوئی بندے اریسٹ ہوئے تھے ان کی حد تک میں فری آف کاسٹ وکالت کرنے کے لیے بھی حاضر ہوں, اور اسلام آباد میں کسی بھی قسم کی مطلب اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی میں ایز اے لائر اپنی خدمات سر انجام دوں گا. کچھ دوستوں کے قوائف میں نے یہاں سے اکٹھے بھی کیے ہیں جو کہ میں نے ٹائمنگ بھی دی ہے, اور انشاءاللہ ہوپ فلی میں مزید بھی ان کے اوپر ورک کروں گا, اور میری جتنی مطلب ایبلٹیز ہے وہ میں اپنی سرو کروں گا. لہذا مجھے تھوڑا سا یہ میڈم ڈاکٹر مارن بلوچ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی چونکہ سپرسیڈ کر رہی ہیں ان سب کو, تو آپ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل اگر تھوڑی سی فراہم کرتے. تھینک یو. جی تھینک یو ایڈوکیٹ صاحب. یہ ہے کہ 280 کے قریب جو طلباء انہوں نے گرفتار کیے تھے وہ سب رہا ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی ان پر کیسز لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں, اپنے تعلیم کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں, تو بار بار پیشی لگا کر ہمیں یہ خطرہ بھی ہے کہ شاید ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے. تو اگر اس چیز میں ہمیں آپ کی ضرورت ہوئی تو ضرور ہماری لیگل ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی. تھینک یو.
और आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम जाहिद जहान है। मेरा ताल्लुक फाटा से है। मैं आप सबके दुख को और दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे ख़ानदानों के साथ भी चलता रहा है। आज आप शिकार है, कल हम शिकार थे, कल हमारे गांव के लोग शिकार थे। वो भी पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी है। आईन हमें ये हक देता है और ये हमारा हक है कि अगर कोई गलत भी है, कोई भी मुलजिम है, उनको अगर कोई पुलिस वाले या फौजी पकड़ते भी है तो ये आईन के आर्टिकल 10 में है कि वो हमें पेश करेंगे अदालत में अगले 24 घंटों के अंदर अंदर, पर नहीं करते यहाँ पे। और ये इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म जो निगरान इस वक्त बैठा हुआ है, वो उस पिछले दिनों लाहौर में उन्होंने स्टूडेंट्स को जवाब दिया कि इसमें दहशतगर्द है। मुझे यहाँ पे कोई दहशतगर्द नज़र नहीं आ रहा, ये सारे पाकिस्तानी हैं। अगर कोई दहशतगर्द है वज़ीर आज़म साहब, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो आप उनको पेश करें, उनको साबित करें। आप ये अदालतें किस लिए हैं, इस पे हमारे मुल्क के पैसे क्यों लग रहे हैं? इसीलिए लग रहे हैं कि सबको इंसाफ मिले, सबको इस इंसाफ के निज़ाम पे एतबार हो। लेकिन सैडली टू से नहीं होता यहाँ पे ऐसा कुछ। ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस चलती रहेंगी और ये हम जैसे हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे, हमारे जो बुज़ुर्ग है, ये इसी तरह रुलते रहेंगे। मेरा सवाल मारंग बलोच साहिबा से है। उससे पहले मैं इनको तो अप्रिशिएट जितना भी करूं वो कम है, लेकिन आपने जिस तरह बताया अभी तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आपके 12 दिन हो गए इतनी सर्दी में, ज़्यादा मैं अभी कांप रहा हूँ सर्दी की वजह से, तो आप रात कैसे गुजारती होगी? सवाल ये है कि अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका अगला स्टेप क्या है? यहाँ पे क्या बैठना है सिर्फ, या कोई और आपका प्लान क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? और जहाँ तक रही बात इन फैमिलीज़ की, तो बतौर पाकिस्तानी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता था, ना कर सकता हूँ, बल्कि आपके सपोर्ट के लिए आ सकता हूँ। वो कहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं कर सकते तो दिल में कहें या उसके लिए आवाज़ उठाएं, तो मैं आपके लिए आवाज़ उठाने को तैयार हूँ। और मैं बाकी भी जिधर ये पाकिस्तानियों को मेरी रिक्वेस्ट है जो सुन रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, ये आग आज इनको लगी हुई है, कल को हमारे तरफ पहुँचेगी, हमें लगेगी ये आग, हमारे घरों से उठाए जाएंगे। तो इन सब के साथ इज़हार यकजहती के लिए एटलीस्ट आप सब निकले, यहाँ आए, इनको सपोर्ट करें, इनकी आवाज़ बने। शुक्रिया। थैंक यू भाई, आपने सवाल पूछा। देखें, हम कब तक यहाँ बैठेंगे ये तो रियासत पर डिपेंड करता है। इतनी सर्दी में जब आप लोग यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं, हम 12 दिनों से, 12 दिन नहीं है 41 दिनों से यहाँ बैठे हैं। हमारा इतनी सर्दी में बगैर वसाइल के, बगैर कंबल के, बगैर आग के यहाँ बैठने से ही हम रियासत में मौजूद और जो आम शख्स है उसको बताना चाहते हैं कि ये मसला कितना संजीदा है, कि यहाँ बैठी हुई माओं को अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, उनको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं। वो दिन में इस कैंप में 4-5 बंदे तो मामूली तौर पर एम्बुलेंस में जाते हैं और एडमिट होते हैं, लेकिन एडमिट होने के बाद फिर से यहाँ आते हैं और फिर से बैठते हैं। तो ये हमारी तहरीक चलती रहेगी। ये नहीं है कि हम यहाँ से उठ गए तो शायद ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी, नहीं, क्योंकि ये तहरीक बलूचिस्तान भर की तहरीक है और अब इसमें पाकिस्तान की दीगर जो अक़वाम है वो भी हमारे साथ है। इस तहरीक का इन्हिसार स्टेट पर करता है कि वो कब अपनी नस्ल कुशी की पॉलिसी को बदलेगी। जब तक वो नहीं बदलेगी तब तक लोग रेजिस्ट करेंगे। ये कॉमन सेंस है। आप एक कौम को 75 सालों से उनकी कत्ल गारत कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं, उसको एक कॉलोनी की तरह आप लोगों ने ट्रीट कर रहे हैं, तो वो कौम उसमें रेजिस्टेंस तो करेगी। और ये रेजिस्टेंस रिएक्शन नहीं है, ये रेजिस्टेंस है जिसमें हमारी आने वाली नस्लें भी इस रेजिस्टेंस को उसी तरह लेकर जाएंगे। थैंक यू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ڈاکٹر محرم بلوچ سے ہے. سب سے پہلے تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان سے یہاں تک آئی اور اپنی آواز مقتدرہ کو پہنچائی. کئی سوال ایک ہی جملے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے آئیے, آپ نے وہاں سے اپنی تحریک شروع کی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کی آواز کو نہیں سنا گیا اور آپ کو اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنا آپ نے اپنے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے یا لیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے, اور آپ کیا سوچتی ہیں کہ کس بنیاد پر وہ اس طرح کے جوابات دے رہے ہیں جس طرح آپ کے سوالوں کے آپ کے تحریک کے اگینسٹ وہ جواب دے رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ میڈیا پر کیا آپ کے مسئلے کو صحیح سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے؟ میڈیا کیا کردار ادا کری ہے؟ کل تو ہم نے حامد میر صاحب کو سن لیا ہے, وہ یہاں پر آئے تھے, سب سے ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور میڈیا سے آپ کیا درخواست کرنا چاہیں گے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور جمہوریت کا بھی یہی حسن ہے کہ سب مسائل کو بات چیت سے حل کیا جائے, تو کیا آپ بات چیت ان کے ساتھ کریں گی یا نہیں, یا آپ صرف یہ چاہتی ہے کہ نہیں ہمارے جو گرفتار شدہ افراد ہیں ان کو بس نکالا جائے, یا آپ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تھینک یو. بہت بہت مہربانی بھائی. خیر, ظالم اور مظلوم کے درمیان تو بات چیت میرے خیال سے ایک بہت ہی کمپلیکس سوال ہے, اور کسی ادارے کی طرف سے ہمیں سنا جائے یا نہ سنا جائے, اگر کوئی سنجیدہ ہے تو وہ اس پالیسی کو ختم کرے. سنجیدگی اس پالیسی کے ختم کرنے میں ہے, اور ابھی تک پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو جبری گمشدگی جیسے سنگین جو الزام غیر انسانی حقوق کے الزامات ہیں ان کو سولو کر سکے. اور ہم جو 42 دن سے یہ تحریک چلا رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے, انصاف کا مطالبہ, وہ وہیں پہ ہے. لیکن ایک پالیسی وہ ہے جو اسٹیٹ نے اپنائی ہوئی ہے, جس کے مطابق جو پرائم منسٹر کا بیان تھا وہ یہی تھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والے
Audionic, the sound master. सिंपल ये है कि जालिम के पास वायलेंस है, वो उस ताकत को इस्तेमाल कर रही है, और मजलूम के पास जो है ना अपनी अवामी सियासत की ताकत है. तो हम हमारी बातचीत अगर जवाब Audionic, the sound master. हेलो. तो जो तहरीकें चली हैं वो तहरीक भी यही कह रही है, हम बातचीत के लिए, नेगोशिएशंस के लिए आए हैं, लेकिन नेगोशिएशंस का मतलब यही है कि सबसे पहले आप संजीदगी दिखाएं, सबसे पहले इस अमल को खुद रोकें. अभी भी 20 से ज़ायद अफराद को बलूचिस्तान से जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा चुका है. हमारे दरमियान बातचीत का एक ही वो है कि वो अपनी पॉलिसी को बदल करें, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है. थैंक यू. अगर किसी और को भी सवाल करना है या कमेंट पास करनी है वो भी कर सकते हैं, और डॉक्टर के अलावा सम्मी है, शाजी है, या कि फैमिलीज, उनसे भी आप लोग सवाल कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मेरा ताल्लुक़ फाटा से है. सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी हिम्मतों को दाद देना चाहता हूँ. इस सर्दी में आप यहाँ पर आए हैं, इसी कैफियत से हम भी गुजरे हैं. लेकिन मेरा सीधा सवाल पे आऊँगा. मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल यही है कि जो आपने या जो हमारे इलाके में जो तहरीक शुरू थी हुकूमत के ख़िलाफ़ को हो, या जो मिसिंग पर्सन का मसला था, तो इसके बजाय अगर हम अपने सरदारों व डेरों के ख़िलाफ़ ये तहरीक शुरू कर दें तो आया ये उससे बेहतर ना था? क्योंकि आपके यहाँ भी बलूचिस्तान में और हमारे यहाँ भी कई ऐसे सरदार व डेरे जिनके अपनी निजी जेलें हैं, ज़ाती जेलें हैं. पिछले दिनों जो है काफ़ी वाक़या मशहूर हुआ था. तो आया यह तहरीक इनके बजाय अगर हम उनके खिलाफ इस्तेमाल कर ले तो इसके बेहतर नताइज बराबर नहीं हो सकते? जज़ाकल्लाह खैर. हेलो. सवाल किस देखिए, हमारे ऊपर जो जबर कर रहे हैं वो सरकारी सरदार है. उनको बनाने वाला भी सरकार है, उनको मुसल्ला करने वाला भी सरकार है, उनको ये ताकत देने वाला भी सरकार है. एक चीज जो मैं बयान करना चाहती थी, बलूचिस्तान के बारे में 2 मिथ्स इन्होंने क्रिएट किए हैं. उन मिथ्स के जरिए वो रियासती जबर को जस्टिफाई करते हैं. कहा यह जाता है कि आपके सरदार मैं उनसे यही सवाल पूछूंगी कि वो सरदार तो आपकी कौमी असम्बलियों में बैठे हैं, वो सरदार तो आपकी सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं. आप जब एक मासूम बालाच जो बेगुनाह था उसको एक्स्ट्रा जुडिशली किल कर सकते हैं, अपने हिरासत में मार सकते हैं. आप जब वो बलोच तलबा जो यहाँ आपके शहर में आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं उनकी हरासमेंट कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, तो इन सरदारों को क्यों नहीं रोकते हैं? क्या आपका रूल ऑफ लॉ जो है ना सरदारों से अलग है? ये एक चीज जो ये लोग हमेशा बलूचिस्तान के बारे में इन्होंने एक मिथ क्रिएट की है कि कबायली सोसाइटी है, जाहिल लोग है, सरदार इन्होंने बनाए हुए हैं. मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है.
जो हमारा सरदारी निज़ाम या कबायली सेटअप था वो संडेमन का लाया हुआ था, और उस संडेमन के लाए हुए सरदारी निज़ाम को पाकिस्तान ने उससे भी वर्ष तरीक़ेकार में बनाया है। ये सारे जो जितने सरदार हैं इनमें से कोई भी बलोच कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। अगर नुमाइंदगी करता तो यहाँ पे आप ये नहीं देखते कि औरतें, बच्चे और ये खानदान जो है ना ऐसे बैठे हुए हैं। हमारी कबायली जो निज़ाम था उनको मसख करके एक ऐसी सूरत में लाया गया है जहाँ सरकारी सरदार को ब्लेम किया जाता है, लेकिन उसको बनाने वाला हम उस प्रोसेस को बदलेंगे जिसकी वजह से सरदार को ताकत दी गई है, जिसकी वजह से सरकार को मुसल्ला किया गया है, जिसकी वजह से इन सरदारों को आकर हमारी जमीन में हम पर आगे किया गया है। जितने भी सरदार हैं वो सब के सब सरकारी है। और आज बलोच कौम की जो तहरीक चल रही है वो अवामी तहरीक है, जिसमें बलोच कौम खुद पार्टिसिपेट कर रहा है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दौलत है और यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं मैं उन सब से दरख्वास्त करता हूँ, ज़रा एक मिनट इंसान होके सोचें, ना सिंधी, ना पंजाबी, ना पठान, सिर्फ एक मिनट इंसान होके सोचें, अपनी आंखों से देखें, अपनी कानों से सुनें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के हाथों में एक पिक्चर है, एक फोटो है जो चीख के बता रहा है कि ये सब मजलूम है। आप खुद मुशाहिदा करें। और एक मेरे ज़हन में एक सवाल है, वो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं पूछूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब के जहन में यही सवाल है, मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती, जिनमें शायद वो ये सोचने का मतलब उनमें ताकत ही नहीं है या पूछने की हिम्मत नहीं। मैं यही इसीलिए पूछूंगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब जान लें कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जिनके लोग लवाकिन लापता हुए हैं, यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था शायद मेरे मुल्क बलूचिस्तान से लोग लापता हो रहे हैं। वहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा लोग लापता हो रहे हैं। मेरे खुद के घर से मेरे कजन भी लापता हुआ है। 2015 में मेरे चाचा को कत्ल किया भी गया है। वो दुबई से आया था, दावत में गया था। हमारे साथ बेइंतहा ज्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी मैं खुद उनमें शामिल हूँ यहाँ पे बैठे हुए लोगों में। लेकिन जो सवाल मेरे ज़हन में है ना, वो मुझे इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है, इतना ज्यादा उलझन में डालता है। जब भी मैं ये सवाल खुद से पूछता हूँ तो कभी मैं खौफ का शिकार हो जाता हूँ। यही सवाल मुझे बहुत ज्यादा मायूस भी करता है। यही सवाल मैं समीदीन से पूछना चाहूंगा, शायद उसके पास जो जवाब है वो मुझे हिम्मत दे, वो मुझे ताकत दे। तो सवाल ये है, जितने भी लोग लापता हुए हैं 2 दहाइयों से, हम सब जानते हैं इनके पीछे कौन है, इनको कौन लापता करता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं है कि हम इस सवाल का जवाब खुद दें। जी जी, इन सब के पीछे जो भी है, हम सब जानते हैं इनके पीछे कौन है। सुनो, इंटरप्ट ना करें। हम सब जानते हैं कौन है, लेकिन हमारे पास हिम्मत नहीं, हम क्यों पूछें? क्योंकि इनके पीछे वो ताकत है, वो इतना ज्यादा जालिम है यहूदियों से भी। क्योंकि यहूदी जो कर रहे हैं दुनिया के सामने कर रहे हैं, मतलब दुनिया को बता रहे हैं। ये दो फेस वाले हैं, इनका असली जो शक्ल है ना वो छुपा हुआ है। ये पढ़ते कुरान है, नमाज भी पढ़ते हैं, सब करते हैं, इसी कुरान की बेहुरमती भी करते हैं। इसी मुल्क में मतलब लोगों को लापता करते हैं। इस्लाम को खुद नहीं मानते। जो इस्लाम कहता है जुर्म करना गुनाह है, लापता करना गुनाह है, वही करते हैं। तो मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ समीदीन से कि ये जो ताकत है, इतने सारे लोगों को उन लोगों ने लापता किया, क्या ये हार मानेगा? क्या ये बलोचों को लापता करना छोड़ेगा? क्या ये पख्तूनों को लापता करना छोड़ेगा? क्या ये जुल्म करना छोड़ेगा? मुझे नहीं लगता। क्यों मुझे नहीं लगता? क्योंकि जो साजिद हुसैन स्वीडन में गया था, वो सच लिखता था, सच तहरीर करता था, उसको वहां से लापता किया गया, उसको कत्ल किया गया और फिर कहा गया उसने सुसाइड की थी। फिर बानो करीमा को टोरंटो से कत्ल किया गया, फिर कहा गया इसने सुसाइड की थी। तो शायद हमारे साथ भी ऐसा हो, क्योंकि शायद हमारे साथ भी ऐसा हो ना। तो यही सवाल मैं बहुत आई एम वेरी सॉरी, ये मैंने इतना ज्यादा वक्त लिया, लेकिन ये मुझे बहुत कंफ्यूज करता है, मायूस करता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया।
آپ نے سوال کیا کہ 20 سالوں سے لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں اور اس ریاست سے ہم انصاف کی کیسے امید کریں. ایک چیز میں بطور ایک لاپتہ افراد کی بیٹی جن کے والد گزشتہ 15 سالوں سے لاپتہ ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ظالم کے ہاتھ کھلے نہیں چھوڑنے ہیں. ظالم کے جو ظلم کرتی ہے اس کے خلاف لڑنا ہے، اس کے خلاف بولنا ہے، نکلنا ہے. جب ہم ظالم ظلم کرے گی اور ہم مظلوم خود کو سمجھ کر گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو یہ جو ہے ظالم کو مزید اپنے ظلم کو جاری رکھنے کی بڑھاوا دے گی. اس وجہ سے ہم بلوچستان کے وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی لوریوں میں بھی بغاوت کرنا سکھاتے ہیں، مزاحمت کرنا سکھاتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں، اپنے حق کے لیے مرنا سکھاتے ہیں. تو ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھروں سے سالوں سال لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے. ان کے گھر والوں کو کوئی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں. تو اس حالت میں ایک بیٹی کے لیے یا ایک بیوی کے لیے، ایک بہن، ایک ماں کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ سڑکوں پر آئے اور احتجاج کرے. اور جہاں تک انصاف کی بات ہے، ہم نے اپنے تمام قانونی اور آئینی جو ہے طریقہ کار آزمائے ہیں. ہم نے ان 14-15 سالوں میں وہ تمام طریقہ آزمایا ہے. یہ جتنے بھی یہاں پر لوائقین ہیں تمام وہ عدالتی طریقہ کار آزمایا ہے جہاں پر ہمیں انصاف مل سکتی ہے. لیکن ریاست انصاف دے گی یا نہیں دے گی، ہم اس بنا پر سڑکوں پر نہیں آتے. ہم صرف اس بنا پر سڑکوں پر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور ہم اس ناانصافی کے خلاف بولیں گے، ہم اس ناانصافی کے خلاف بغاوت کریں گے، ہم اس ناانصافی کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر بار مایوسی کے بعد امید دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر بار جو ہے ہم جب اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو ہمیں واپس سڑکوں پر لاتی ہے. یہی وہ امید ہے اور یہی وہ تربیت ہے. شکریہ. جی، میرا نام ہے نیاز بلوچ اور بیسکلی میں مستم سے ہوں. بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا اور میڈیا اسٹڈی میں میں چھوٹا سا ایک صحافی ہوں. لیکن یہاں پہ جتنے بھی لوائقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درد کو میں بہت قریب سے محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں خود اس کرب سے گزرا ہوا ہوں. سنگت سنا کا فیملی ممبر ہوں. اور ڈاکٹر مارنگ صاحبہ اور اس کی جو فورس ہے سمیدین بلوچ، سائرہ، مازیب، بیبو بلوچ، کیونکہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو اتنا ڈرایا گیا اور ہماری یہ سسٹرز نے بازو بنا ہوا ہے اپنے مردوں کے لیے. مجھے ان پہ بہت زیادہ فخر ہے، لیکن ان کی اس چیز کو میں داد دیتا ہوں کہ کریڈٹ اپنے سر پہ یہ نہیں لیتی ہے، کریڈٹ ان لواحقین کو دیتی ہے یہ کیمپ کے جو انہوں نے لگائی ہے. جسٹ میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر مارنگ سے. کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے یہاں پر ایک خاتون آئی تھی صاحبہ، وہ کہہ رہی تھی کہ میں قرآن لے کر آیا ہوں، ڈاکٹر مارنگ کی گود میں نے رکھی ہے. وہ پری پلانڈ آئی تھی، پروپیگنڈا کرنے کے لیے آئی تھی. میرا یہ سوال صرف جسٹ ڈاکٹر مارنگ سمیدین سے نہیں، صبغت اللہ سے نہیں، یہ سب سے ہے جہاں جتنے بزرگ عالم قاری بیٹھے ہوئے ہیں. کیا قرآن پاک میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سب کو مارو، تاڑو، پھاڑو، کسی کا اکلوتا بیٹا چھین لو پھر مجھے لے جاؤ، سب کچھ معاف ہے؟ صرف اس چیز کو میرے لیے ایکسپلین کرو. قرآن کے اوپر ایک بار پھر ہمیں دھوکہ دے رہے. قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر ہمارا جو نسل کشی ہے وہ کنٹینیو رہے گا. جسٹ یہ سوال ہے میرا. آپ کا جو کوشچن جہاں تک میں نے سمجھا، وہ جو خاتون آئی تھی قرآن ہمارے گود میں رکھ کے کہنے لگی کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، یہ میں واضح کروں کہ ریاست نے ہر وقت بلوچ کو
सिर्फ कुरान के नाम पे धोखा दिया है, क्योंकि बलोच के दिल में कुरान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए एक दिन कब मैं यहाँ पे नवाब नूरुल खान का बता रहा था कि उन्हें कुरान मजीद दिखाया गया और उसने कुरान मजीद का एहतराम किया, नीचे उतरा और उसे सारे बच्चे उसके फांसी पे चले गए। उसे पता था कि नीचे उतरूंगा मेरे साथ ये होगा। ये आज तक भी उसी प्रोग्राम पे है कि जहाँ कहीं कोई बलोच कुछ करे और हम उन्हें कुरान दिखाएं, लेकिन इस रियासत में कुरान के साथ जो किया वो हमारे सामने है। काहन में एक वाक़या हुआ था, शायद आप लोगों को उसका इल्म हो, कोटा काहन में एक खातून ने जब फोर्सेस में अटैक किया था तो एक खातून ने कुरान मजीद उठाया था और आर्मी वालों के सामने खड़ा हुआ था। ऐसे आर्मी वालों ने जो गोली चलाया वो कुरान शरीफ को लगता है, उसके बाद उसके गले को लगता है, वहीं पे वो बेचारी शहीद होती है। ये बहुत मशहूर वाक़या हुआ था। ये कुरान की इज्जत है इस रियासत में, और आके हमें कुरान दिखाते हैं कि इसका एहतराम करें। अच्छा, कुरान यहाँ जब लाल मस्जिद पर अटैक हुआ था, शायद आज भी यूट्यूब में उसके वीडियोज मौजूद हो, कुरान मजीद के सफ़े यहाँ इस्लामाबाद की गलियों में उड़ रहे थे और उनमें आग लगी हुई थी, बिल्कुल जल रहे थे। और ये जो आर्मी थी ना पाकिस्तान की, नारे तक भी दूसरा कहता है अल्लाह अकबर, फेंको लाल मस्जिद पे बम। ये इनके पास कुरान का और मस्जिद का और इस्लाम का एहतराम है। तो ये मजाक है, ये कुरान मजीद हमें दिखाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हकीकत में इनके दिल में कुरान की क्या अहमियत है। हम तो कुर्बान है कुरान पे। बलोच के पास है कुरान की अहमियत, हमारे हर घर में है। डोसा देते हैं उन्हें हर बार, कुरान सुबह निकलते हुए भी और घर आते हुए भी पढ़ते भी हैं कुरान मजीद। यहाँ हर कोई बैठा हुआ है, हमसे आप सुने तो उन्हें 20-30 सूरतें जरूर याद होंगी, लेकिन यहाँ पंजाब में घूमे किसी से पूछे आपका पैगंबर कौन है तो उसे पता भी नहीं होगा कि कौन है। हमें कुरान के नाम पर बार बार धोखा देते हैं। अब इसलिए ये आते हैं, हमें पता है कि इनको भेजा गया है कि इनको जाके धोखा दे दो, कुरान दिखाओ कि जी कुरान के नाम पे उठे, कुरान में हम कुर्बान है। लेकिन ऐसे लोग जो आके हमें कलाम शरीफ दिखाते हैं, हम भी यही समझते हैं कि ये हमें धोखा देने के लिए आए हैं, मजाक के लिए आए हैं। जब इतना होगा हम उठेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग बैठे हुए हैं, नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। यहाँ पे कई खवातीन बैठी हुई है, अगर आप उन्हें देख के यहाँ खड़े रहे, कुछ देर बाद कुरान मजीद उठा के यहाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं, यहीं पे पढ़ रहे हैं। ये एहतराम है। लेकिन जो कुरान मजीद लेके आए थी, उसका अगर आप शक्ल देखें वो लगता ऐसा है कि उसके हाथ में कुरान शरीफ जो दिया गया था वो कुरान शरीफ की बेहरमती नहीं थी। जिसको कुरान मजीद दे के उन्होंने भेजा था, मेरे ख्याल में कुरान मजीद की बेहरमती थी कि किसे देख के तुम लोगों ने भेजा है। तो बस इतना ही कहूँगा कि कुरान का एहतराम हम सबसे ज्यादा जानते हैं, इनसे बिल्कुल कई गुना ज्यादा जानते हैं। लेकिन जहाँ कुरान का एहतराम है वो शायद ये नहीं चाहते कि कितना हम उसके लिए तो फांसियों पे भी चढ़े हैं ना, हमारी तारीख है। लेकिन ये हमें अब इस तरह आके धोखा नहीं दे सकते कि जी हम कुरान आए और अब हटे बिनवार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है, मैं विलेज से हूँ। मेरा डॉक्टर मरून, सबसे पहले मैं डॉक्टर मरून को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि डॉक्टर ने हमें जगाया है। हम बुज़दिल कौम है, मैं भी डेरा गाजी काम से मतलब बलूचिस्तान से चंद किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन हमारे इलाके में पहले कभी लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। जब डॉक्टर मरंग साहब ने जब से ये तरीक चलाई है, हमें बहुत मतलब हम बुज़दिल थे बहुत। अब हमें हम बुज़दिल हम अब जाग चुके हैं। इसके बाद में डॉक्टर मरंग साहब से ये सवाल है कि हमारा फेडरल मिनिस्टर भी बलूचिस्तान से है, हमारा वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से है और चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान से है। ये लोग जब इक़्तिदार में नहीं थे, पहले ये मीडिया को कहते कि बलूचिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाएं। जब ये अब इक़्तिदार में आ गए, ये क्यों अपनी लोगों पे जुल्म कर रहे हैं और अपने उनको हकूक़ नहीं दे रहे हैं, उन पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? हमने अपने वज़ीर आज़म को सिर्फ सेल्फी बनाने के अलावा कहीं नहीं देखा। उसके बाद सेल्फी पे देखा है कि ये कभी कहाँ सेल्फियाँ बना रहे हैं
उनको इन मजलूमों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं चंद घंटे यहाँ आया हूँ, मुझे इतना सर्दी लगी है, शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग यहाँ कैसे बैठे हैं। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये बलूचिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? ये क्या इनको फौज ने यहाँ लाया है, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को और चीफ जस्टिस को? क्या शुक्रिया, मेरा यही सवाल था आपसे डॉक्टर साहब। जब से हम इस्लामाबाद आए हैं तो मुतअद्दिद बार साफ़ी हजरात का भी सवाल ये रहा है कि चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का है, वज़ीर आला भी बलूचिस्तान का है और चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान का है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह एक लापता अफराद के ऊपर सियासत की जाती है, कश्मीर की आज़ादी के ऊपर सियासत की जाती है, तो उसी तरह बलूचिस्तान में होने वाले रियासती जबर को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद को अपने अदारों में बड़ी बड़ी पोस्टें तो दे देते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कोई बलोच जो है ना, अगर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में होने वाले रियासती जबर को रोक सकता है। रोकना तो उसको चाहिए था, उसका ताल्लुक़ वो बलोच हो या ना हो, बलूचिस्तान से हो या ना हो, जिस कुर्सी पे वो बैठा है, जिस ओहदे का वो जिम्मेदार है, उसके रिक्वायरमेंट्स तो यही है, जिस आइन का उसने ओथ लिया है उसके रिक्वायरमेंट्स तो यही है। चीफ जस्टिस को बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों, जबरी गुमशुदगियों और जो मसक शुदा लाशें हैं उनका एहसास होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना यहाँ सर्दी में पड़े रहें या लवाकिन जो है ना 42 डेज से यहाँ बैठे रहे। एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इस मुल्क में एक भी शख्स गुमशुदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको प्रोड्यूस कर सके। और उस दिन जब शहीद बालाज को सेशन कोर्ट में पेश किया गया और सेशन कोर्ट के बाद 2 दिन के बाद उसकी मसक शुदा लाश उसके खानदान को दी गई, मेरे ख्याल से इस वाक़ये के बाद पाकिस्तान के तमाम वकला ने जो है ना बाइकाट का ऐलान करते, लेकिन अफसोस उनकी जंग भी हमें लड़नी पड़ रही है। वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जो इंसाफ का वो लोग ओट लेते हैं, वो ओट उन्होंने कभी पूरा नहीं किया है। और मेरे ख्याल से ये सवाल अब उनसे भी जाता है, और मैं बारहा कह चुकी हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही तबके हैं, एक जालिम है और एक मजलूम है। हम मजलूम को अक़वाम हैं और जो भी इसके अलावा जितने भी अहदेदार हैं वो जालिम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इंसाफ फराम करने में एट द फर्स्ट प्लेस ही नाकाम हो चुके, इंसाफ फरामी को छोड़े, वो तो ये कंसिडर कर रहे हैं, वो ये बावर कराना चाहते हैं, एक माँ जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, एक माँ जिसने उसको संभालने के लिए अपनी जमा पूंजी लगाई, वो डर या वो खौफ। एक बलोच माँ रात के 5 या 6 बजे तक अगर उसका बेटा घर नहीं आता है तो उसको बुखार चढ़ जाता है, वो परेशानी में अपने सहन में घूमती रहती है कि मेरा बेटा कहाँ है, और उस बेटे को ये लोग लापता कर देते हैं और उस बेटे को वो समझ भी नहीं पाती है कि उसका बेटा कहाँ है। तो ये अलमिया है हमारे लिए, ये हम सब के लिए अलमिया है। और मैं समझती हूँ कि ये रियासत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इस इतने बड़े संगीन मसले को हल करने के लिए, और उनका कहना यह है कि वो उस माँ से ये कहते हैं कि तुम्हारा बेटा था ही नहीं। अच्छा, 10 साल की बात है, 10 साल वाला मसला हम हल नहीं करेंगे। 15 साल की बात है, 15 साल वाला मसला हल नहीं करेंगे। ये उनकी संजीदगी है कि वो एक माँ को ये कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारे को गोद से हमने अब तुम्हारे बेटे को जो खींच कर लेकर गए थे, तुम ये भूल जाओ। अगर तुम्हें इस रियासत के साथ वफादारी निभानी है तो अपने बेटे को भूल जाओ, उसकी मसकशुदा लाश को भूल जाओ। एक बीवी से ये कहते हैं कि जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारने का सफर तय किया था और वादा किया था, उसको भूल जाओ। तो ये एक शायद मीडिया है और शायद ये पीछे बैठे हुए लोग या हम लोग, आप लोगों को शायद आज ये एहसास हो रहा है कि सर्दी में हम लोग क्यों यहाँ बैठे हैं, लेकिन यकीन करें अल्फाज नहीं है जबरी गुमशुदगी की शिकार अफराद की और उनके विक्टिम फैमिलीज के उस दर्द और उस तकालीफ को बयान करने के लिए कोई अल्फाज नहीं है।
जो लोग इसका शिकार हुए हैं वो भी इस बात को कभी समझ नहीं सकते कि कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। एक चीज ये होती है कि आपका प्यारा चला जाए, एक चीज वो होती है कि आप इमेजिन कर रहे हो कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, वो किस अजियत में है, वो किस तकालीफ में है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद सलमान है। मैं तोसा शरीफ का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम इधर धरने में बैठे हुए हैं, हिस्सा ले हैं धरने में, इस तरह हम इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते कि अपने जो हमारे यहाँ सरदार हैं, जो फौज के और इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, उनके खिलाफ हम इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं लेते? अगर इलेक्शन में हिस्सा ले के अगर हम सीट जीत के अगर हम एहतजाज के तौर पे उनमें हल्फ ना उठाएं तो वो भी हुकूमत के तो इंटरनेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल दुनिया को सही मैसेज जाएगा कि अगर हम जीत के अगर हिस्सा नहीं लेंगे, हल्फ नहीं उठाएंगे असेंबली में। वोट अच्छे ना उससे तो मिनवा, जहाँ तक आपका सवाल समझ पाए हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे तो आपके मसले हल नहीं होंगे, आप असम्बलियों में पहुँचे अपने मसले हल करें, शायद आप यही कहना चाहते हैं। वैसे बलूचिस्तान की जो ग्राउंड है ओवरऑल में अगर आपको बता दूं, 80 से 90% लोग तो तकरीबन इस चीज़ के हक में नहीं हैं कि वहाँ जो इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन सबको पता है बोगस है। मैं यहाँ इस वक्त बैठा हुआ हूँ, आपको पहले से ही मैं बताऊंगा कि मेरे इलाके से MPA कौन है, MNA कौन है। इवन एक दो नाम जो जहन में होंगे मैं आपको ये भी पहले से बता दूंगा कि हो सकता है वजीर आला इनमें से दोनों में से कोई हो, क्योंकि हमें पहले से पता होता है। वहाँ हमारे वहाँ इलेक्शन की हालत ये है, जो डब्बे आते हैं ना, डब्बे उनमें पहले से वोट भरे हुए होते हैं। अगर ऐसे उनको हिलाएं तो पता चलेगा कि उनके अंदर कितना वोट है, बराए नाम कुछ अच्छा है। और एक दूसरे जो कैंडिडेट है उनका तो बाकायदा जो डब्बा है वोट से भरा हुआ है, वो डीसी ऑफिस के सामने ऊपर घूमता है, जब वोट की जरूरत होती है वो उतर जाता है। और हमारे पास वोट मजाक है। बलूचिस्तान में इलेक्शन कभी हुए ही नहीं है, सिलेक्शन है। जब से हम देख रहे हैं बिल्कुल सिलेक्शन है, और ये छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए होते हैं अपने मनपसंद बंदे। आज अपने, हालांकि ये अपने इस काम से बिल्कुल पशेमान भी हैं, लेकिन अब वो लोग आना नहीं चाहते हैं जो हकीकत में ग्राउंड में मौजूद हैं, जो मसाइल हल करना चाहते हैं। आए अभी भी 2-3 बंदे आए थे हमारे पास मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन में खड़े, उन्हें भी मैंने अभी यही सवाल किया कि आप इलेक्शन में खड़े क्यों हैं? कहते हैं अगर हम ना हो तो ग्राउंड हाल ही होगा और दूसरे तीसरे आएंगे। मैंने कहा दूसरे तीसरों को तो वैसे भी आना है। मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं, बलूचिस्तान में हमारे इदारे कभी भी ये नहीं छोड़ेंगे कि जो वहाँ के असल नुमाइंदे हैं वो पहुँचे, और जो असल में वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर यही समझते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे मसले का कोई हल नहीं है, क्योंकि यहाँ जिनको भेजा जाता है वहाँ पे फिर उनको बिल्कुल वो गूंगा कर दिया जाता है। हमारे ऐसे MNA गुजरे हैं इस असेंबली में, 5-5 साल उन्होंने सिर्फ हाल पुटाया है। असेंबली में उनकी एक तकरीर भी नहीं है, 5-5 साल यहाँ गुजार के वापस गए हैं। अब ये इसको आप नुमाइंदा कहते हैं, बस वहाँ से भेज देते हैं कि जी पिलाने का बंदा है, पैसे वाले बंदे हैं, असल रसूख वाले बंदे हैं, इदारों के बंदे हैं, बस उनको ले आते हैं। सिंपल यही कहूँगा लास्ट में कि हमारे पास बलूचिस्तान में इलेक्शन मजाक है। जो असल ग्राउंड के लोग हैं वो यही समझते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे मसले का कोई हल नहीं है, वो यही समझते हैं। बाकी यही जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं की फैमिली में से कल यहाँ एक साथी आए थे, वो कह रहे थे कि मैं काउंसलर हूँ, लेकिन उनका भी भाई गायब था, वो उसी को ढूंढने के लिए यहाँ आया है।
तो मतलब है जैसे लोग के बेचारे जाते हैं वहाँ, लेकिन वो बेबस होके फिर वापस निकलते हैं और उनका कोई वहाँ दर्द का मदावा है नहीं। देखिए जनाब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। हमसे कुछ बोल नहीं सकते, बस हम इतना बोलते हैं कि अल्लाह पाक ही है। मरंग है कमरंग है, नाम भी बहुत मुश्किल है कि हम लोगों में इतना ताकत आ जाए, गैरत आ जाए। इंशाल्लाह इसका चौथा हिस्सा भी आ जाए ना, इंशाल्लाह ये पूरा गड़बड़ खत्म होएगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि मरंगा जैसा गैरत हम लोगों में आ जाए। एक टुकड़ा भी आ जाए ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फैसले करेगा। बाकी हर आदमी सोचे ना, जो मुंह पे बोलते हैं कि हम आपके साथ गम में बराबर के शरीक हैं, झूठ। मेरा बेटा बीमार हो जाए, खुदा की कसम लाखों रुपए मिनटों में मैं पैदा कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए हम सोचे कि हम इन लोगों के लिए क्या किया। मरंगा को खुदा तौफीक दे कि और भी दलेर बन जाए। और अब मैं बाकी लोगों से माजरत चाहती हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इस प्रोग्राम को अभी ख़त्म करते हैं और आगे आप लोगों की खातिर इस तरह के और भी प्रोग्राम रखेंगे। बहुत शुक्रिया।